آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، اور اس زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ آپ دیکھیں 14ویں رات کا چاند اپنے جب جوبن پہ ہوتا ہے، اس وقت آپ اگر اس چمکتے ہوئے چاند کو دیکھیں اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، میرے عزیزوں، رات کے اس آخری پہر میں جب بندہ وہ منظر دیکھے تو وہ منظر دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے ستاروں کے گرد مجھے اور آپ کو اچھا لگتا ہے، سردیوں کی رات ہو، مومن بندہ اٹھے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مصلی پہ آ جائے، جس طرح مجھے اور تجھے وہ چمکتا ہوا چاند ستاروں کے گرد اچھا لگتا ہے، مومن بندہ مصلی پہ اللہ رب العزت کو اچھا اور پیارا لگتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اور پھر ان میں سے 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر تقسیم فرما دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کائنات کی ہر چیز کے اندر ہمیں یہ جو الفتیں محبتیں نظر آتی ہیں، یہ اسی ایک رحمت کے حصے کی برکت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ماں کے دل کے اندر اولاد کے لیے محبت ہے، بھائی بھائی کے دل میں محبت ہوتی ہے، بہن بہن میں محبت ہوتی ہے، پڑوسی پڑوسی میں محبت ہوتی ہے۔ الغرض جتنی محبتیں ہیں ساری کی ساری میرے پروردگار کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے جو کائنات میں تقسیم فرما دیا۔ آپ اگر عورت کی زندگی کو دیکھیں تو جب کنواری ہوتی ہے تو اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کو کپڑوں سے محبت ہوتی ہے، زیورات سے محبت ہوتی ہے، ان اشیاء کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ اب وہی لڑکی جب بیاہی جائے، نکاح کر دیا جائے، شادی شدہ ہو جاتی ہے، اب اس کے محبت کے انداز اور جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب وہی عورت ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے، اب اس کی محبت کے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں، انداز کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسی لڑکی کو
اسی عورت کو اس کا خامد بازار لے کے جاتا ہے, کہتا ہے آؤ میں آپ کو شاپنگ کروا کے لاتا ہوں. اب وہ جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں آپ کو کپڑے لے کے دیتا ہوں, اشیاء خرید کے دیتا ہوں. اب وہ جاتی ہے, اب جا کے کیا کرتی ہے, اپنے کپڑے دیکھنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے جوتے دیکھ رہی ہوتی ہے. بھائی میں آپ کو لے کے دینا چاہتا ہوں. کہتی ہے نہیں, میری خیری ہے, تم یہ لباس, کپڑے, جوتے میرے بچے کے لیے مجھے لے کے دے دو. میں ایسے ہی گزارا کر لوں گی, لیکن میرے بچے کے لیے اچھے کپڑے ہونے چاہیے. یہ ماں کی مامتا ہوتی ہے, ماں کی محبت ہوتی ہے. اور پھر فیڈر دیکھ رہی ہوتی ہے. جی یہ آپ کیوں دیکھتی ہیں؟ کہتی ہے اس لیے دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے بچے نے جس چیز میں, برتن میں دودھ پینا ہے, جس فیڈر میں دودھ پینا ہے, وہ فیڈر بھی خوبصورت ہونا چاہیے, وہ پیارا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور پھر ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے, پھر فیڈر کے اوپر بھی غلاف چڑھاتی ہیں. کیا کیا سبحان اللہ, پیارا بنا کے. جی یہ کیوں سارا کچھ کرتی ہے؟ سبحان اللہ. جی میں ماں ہوں, میں ماں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ ماں کے دل میں محبتیں کس نے پیدا کر دی ہیں؟ یہ میرے پروردگار نے پیدا کی ہے. سبحان اللہ. اور پھر ماں جانوروں میں بھی ہوتی ہے. آپ مرغی کو دیکھتے ہیں, مرغی ہے, بلی آ رہی ہوتی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں. اب یہ اپنے ان چوزوں کو, اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے, حالانکہ یہ خود بھی کمزور جان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بلی آ رہی ہوتی ہے, اب اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہتی ہے تم پہلے مجھے مارو گی پھر میرے بچوں تک جاؤ گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے رب کی وہ رحمت کا حصہ ہے جو اس ماں کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں بچہ نافرمان ہوتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, عیب کر رہا ہوتا ہے, ماں کے پاس آ کے اس کی شکایت لگائی جاتی ہے. کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے آج یہ جرم کیا ہے, آپ کے بیٹے نے آج یہ کر دیا ہے. وہ آگے سے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں, میرے بچے نے نہیں کیا. اللہ کی بندی, تیرے بچے نے کیا ہے, میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. کہتی ہاں مجھے پتہ ہے, اس نے کر تو دیا لیکن اللہ اکبر کبیرہ اس نے خود نہیں کیا ہے, اس کو دوست برے مل گئے ہیں. اللہ اکبر. اس کے برے دوستوں نے اس کو برائی پہ لگا دیا ہے, ورنہ میرا بچہ تو اچھا بچہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اب آپ اندازہ کریں اس بات سے, اللہ اکبر کبیرہ, کہ جس رب کریم نے ماں کے دل کے اندر کائنات لوگ کے لیے کتنی محبت اور پیار ہوگا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح ماں فیڈر اچھا لاتی ہے, دودھ کا خیال رکھتی ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے رب نے بھی میرے اور تیرے لیے دودھ کا خیال رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن سنو, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ. اللہ اکبر کبیرہ. نسقیکم, اللہ اکبر کبیرہ, ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. اللہ اکبر کبیرہ. سائغا للشاربین. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, بیٹھ کے جو اللہ اکبر پیٹ کے اندر گوبر بھی چل رہا ہے, پیشاب بھی چل رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, خون بھی چل رہا ہے,
सब कुछ चल रहा है, लेकिन मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे, हमने भैंस के पेट के अंदर तेरे लिए दूध की नहरों को जारी कर दिया। क्यों? इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा, मां अगर तेरे दूध का ख्याल रखती है तो मैं रब्बे करीम हूं, मैं भी फिर तेरी जरूरतों का ख्याल रखता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं हम उस दूध की नहर के अंदर पेशाब को नहीं मिक्स होने देते, गोबर को मिक्स नहीं होने देते, खून को मिक्स नहीं होने देते। क्यों अल्लाह, क्यों अल्लाह, क्यों अल्लाह, क्यों नहीं मिक्स होने देते? सुनो सुनो सुनो, मेरा रब फरमाता है इसलिए मेरे बंदे कि तू मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तूने पीना है, तूने इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो अल्लाह की मोहब्बतें कितनी है मेरे तेरे साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी और तेरी बुराइयां मेरे रब के सामने हैं, मेरी और तेरी बुराइयां अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरा और तेरा तज़किरा किया है ना, तज़किरा किया है अल्लाह अकबर कबीरा, तो मेरे रब ने कस्में उठाई हैं, कस्में उठाई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मां बच्चे का तज़किरा करती है लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। मां अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, मां जो है अपने बच्चे की तारीफों के पुल बांध देती है, पुल बांध देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, मेरा रब भी बिल्कुल उसी तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने परवरदिगार पे। सुभान अल्लाह। जब मेरा और तेरा तज़किरा किया है, ऐसे ही नहीं कर दिया, ऐसे नहीं कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मां तारीफों के पुल बांधती है, सुभान अल्लाह, तो उसके दिल में मोहब्बतें किसने डाली है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। जब उन्होंने मेरा और तेरा तज़किरा किया है, ऐसे नहीं कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह फरमाते हैं हमें तीन की कसम है, हमें जैतून की कसम है, हमें तूरे सैना की कसम है, हाज़ल बलदिल अमीन। मेरे महबूब, हमें उस मक्का शहर की कसम है जिनमें हमें तू चलता फिरता नजर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अब बात क्या समझाना चाहते हैं? इतनी कसमें क्यों उठा रहे हैं? अल्लाह फरमाते तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तज़किरा छेड़ना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। अल्लाह क्या बात है? अल्लाह फरमाते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं और मेरे बंदे, हमने तुझे बड़ी खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह, मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, मैंने कहा मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मैं तो गुनहगार, मैं तो पापी, मेरे क्यों तज़किरे ऐसे कर दिए? अल्लाह फरमाते हैं और सुन सुन सुन, अल्लाह अकबर कबीरा, तो तेरे तज़किरे इसलिए ऐसे कर रहा हूं कि तुझसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मोहब्बतें सुनो कैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सारी कायनात के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत गरज की वजह से करते हैं। जी हाँ, गरज की वजह से कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे रब की मोहब्बत कैसी है, मेरे अल्लाह की मोहब्बत कैसी है, जरा सुनो, दिल के कानों से सुनो। सुभान अल्लाह। मेरे रब की मोहब्बत ऐसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, सारी कायनात के इंसान, अल्लाह की शान ऐसी है, सारी कायनात के इंसान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती से भर जाए, मेरे परवरदिगार आलम की शान में एक रत्ती के बराबर भी इजाफा नहीं होता है। सारी कायनात के इंसान, अबू जहल
फिरौन और नमरूद जैसे लोगों से जो है नाफरमानों से भर जाए, मेरे परवरदिगार आलम की शान में एक रत्ती के बराबर भी कमी वाक़या नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे तेरे साथ मोहब्बत फरमाते हुए फरमाता है, हदीस से कुटती है, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे बंदे कभी बैठ के सोचा कर, कभी बैठ के गौर किया कर, कुल्लु युरीदुका लिनफ्सी, हर कोई तेरे साथ अपने लिए मोहब्बत करता है, हर कोई तेरे साथ अपने लिए मोहब्बत करता है। अना उरीदुका लका, अना उरीदुका लका, मेरे बंदे मैं तेरे साथ फकत तेरे लिए मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरी मोहब्बतें तेरे साथ तेरे लिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे तुझसे क्या गरज है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को हमारी नमाजों की क्या जरूरत है? हमारे रोजों की क्या जरूरत है? हमारे इत्काफ की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, फिर बिठा देता है, फिर दर पे झुका देता है। क्यों? इसलिए कि मेरे बंदे तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, अल्लाह अकबर, हमने मां को देखा, बच्चा रेलवे लाइन की तरफ जा रहा होता है, मां रोक देती है, कहते मेरा बेटा रेलवे लाइन के पास न जाना। अम्मा क्यों न जाऊं, क्यों न जाऊं? कहा बच्चा रेलगाड़ी आएगी, तू कुचला जाएगा, मर जाएगा। बच्चा नहर में नहाने के लिए न जाना। अम्मा जी क्यों न जाऊं? कहा तुझे तैरना नहीं आता, जाएगा, डूबेगा, मर जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मां रेलवे की पटरी के पास नहीं जाने देती, मोहब्बत की वजह से। मां अल्लाह अकबर कबीरा नहर में नहाने के लिए नहीं जाने की इजाजत देती। क्यों? मोहब्बत की वजह से। मर जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे रब को भी मेरे तेरे साथ मोहब्बत है, इसलिए फरमाते हैं मेरे बंदे अगर मां रोकती है पटरी के पास न जाना, मां रोकती है नहर में न जाना, मर जाएगा, मोहब्बत की वजह से है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मैं भी तेरे साथ मोहब्बत करता हूं, इसलिए फिर तुझे कहता हूं शैतान के रास्ते पे न चलना, शैतान के रास्ते पे न चलना। क्यों? पटरी के पास जाएगा, मर जाएगा, नहर में जाएगा, मर जाएगा, शैतान के रास्ते पे चलेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम में चला जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वानेबुदूनी हाजा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह अकबर कबीरा। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताकिलो। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, अल्लाह की मोहब्बतें कैसी हैं मेरे तेरे साथ। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है, जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है, अभी नेकी की नहीं है, फकत नेकी का इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी के इरादे के ऊपर ही इस बंदे के नामे आमाल के अंदर नेकी को दर्ज फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते से फरमाते हैं मेरे बंदे ने नेकी का इरादा कर लिया, तुम इसके नामे आमाल के अंदर नेकी को दर्ज फरमा दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह नेकी के इरादे पे नेकी मिलती है, मैंने नेकी कर ली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमने नेकी कर ली है। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा, नेकी के इरादे पे एक लिखवा दी, जब तूने कर लिया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तूने एक की है, हम तेरे नामा अमाल के अंदर 10 नेकियों का अजर और सवाब दर्ज फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे मौला, ये क्यों करते हो? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि मेरे बंदे तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, तू मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, एक बंदे से गुनाह हो चुका है, एक ने गुनाह कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा।
अब इसका क्या करना है? अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों इसके नामा आमाल के अंदर गुनाह दर्ज न करना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इसने कर लिया है, अभी करने का इरादा नहीं किया, कर चुका है, गुनाह कर चुका है। अल्लाह फरमाते हो ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला फरिश्ते को आधे पहर आधे दिन के लिए रोके रखते हैं कि तू रोके रहे, शायद ये तौबा कर ले। सुभान अल्लाह। जब ये तौबा कर लेगा मैं इसको माफ कर दूंगा। अल्लाह माफ फरमा देते हैं, ना माया माल के अंदर गुनाह दर्ज ही कोई नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। नेकी का इरादे पे नेकी लिखवा देते हैं, नेकी करने पे 10 नेकियों का अजर और सवाब दर्ज फरमा देते हैं, गुनाह करने पे गुनाह नहीं लिखवाते। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि इंतजार में रख देते हैं, शायद तौबा कर ले, इसके नामा अमाल के अंदर गुनाह दर्ज ही कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों मेरे मौला? फरमाया इसलिए कि तू मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, अल्लाह अकबर, मेरे मौला एक ऐसा अक्खड़ तबीयत का बंदा है, एक ऐसा नफ्स और शैतान के शिकंजे में जकड़ा हुआ बंदा है, ये तो तौबा कर ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो तौबा कर ही नहीं रहा, इसका क्या करना है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं तेरा वास्ता सखी के साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। और तेरा वास्ता सखी के साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो मेरे मौला, ये तौबा नहीं कर रहा, इसका क्या करना है? अल्लाह फरमाते मेरे फरिश्तों, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी मछलियों, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है गुनहगार बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत समंदर के अंदर मछलियों को, बिलों के अंदर चींटियों को, फिजा के अंदर परिंदों को, सुभान अल्लाह, और रब्बे करीम अपने मलाइका को इस बंदे के लिए इस्तिगफार करने पे लगा देते हैं। सुभान अल्लाह। और ये तौबा नहीं कर रहा, तुम इसकी तरफ से तौबा करो। सुभान अल्लाह। और कुरान कहता है अल्लाह अकबर कबीरा वयस्तगफिरून लिमन फिल अर्द। अल्लाह अकबर कबीरा। ये फरिश्ते सुभान अल्लाह इस गुनहगार की तरफ से मगफिरत मांग रहे होते हैं, तौबा मांग रहे होते हैं, माफिया मांग रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन परिंदों जानवरों की और मलाइका के इस्तिगफार को पसंद फरमाते हुए, कबूल करते हुए इस गुनहगार के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि मेरे बंदे तू मुझे बहुत प्यारा लगता है। सुभान अल्लाह। और तेरे साथ मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसाफिर की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हदीस पाक के अंदर फकत मुसाफिर की दुआओं के ऊपर कबूलियत का तज़किरा है, ये तखसीस नहीं है कि जी मुसाफिर नेक होगा तो दुआएं कबूल होंगी, बुरा होगा तो दुआएं कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहने अल्लाह की रहमतों के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहने अल्लाह की रहमतों के। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी उनकी रहमतें। सुभान अल्लाह। अब जो भी मुसाफिर होगा, मेरे महबूब ने वादा फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाँ। और सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है जब कोई बंदा वुजू कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वुजू की बरकत से इसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में यहां तक आता है हत्ता के अगर नाखूनों के नीचे भी गुनाह होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन गुनाहों को भी अपनी रहमत से माफ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। क्यों? और सखी से वास्ता पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हां। हातम ताई से किसी ने 5 रुपए मांगे थे, उसने 500 दिए थे।
अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा जनाब मुझे तो 5 की जरूरत थी, आपने 500 क्यों दिए? सुनो, वो कहता है तूने अपनी औकात के मुताबिक मांगा, हमने अपनी शान के मुताबिक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हां, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अक्सर साथियों से अर्ज किया करता हूं, भाई मेरे रब की रहमत को कैद ना किया करो, अल्लाह की रहमत को कैद न किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हां, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है, सुभान अल्लाह। और सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, हदीस पाक में आता है जब कोई बंदा अपने घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए चलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम के ऊपर इसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, सुभान अल्लाह। और सुनो, ना सिर्फ ये कि गुनाहों की माफी मिलती है, और भी सुनो, और भी सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को पता है ये कमजोर है, ये कमजोर है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। माशी कमजोरी है, माइशत की कमजोरी है, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वुजू करके घर से नमाजी नमाज के लिए मस्जिद की जानिब चलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे अमाल के अंदर ये सवाब दर्ज फरमा देते हैं कि गोया ये बंदा सुभान अल्लाह अपने घर से एहराम बांध के बैतुल्लाह शरीफ का हज करने के लिए जैसे जा रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या रहमतों के कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या उनकी रहमतों के कहने। और सुनो, फिर अब नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ ली है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में तशरीफ फरमा है, फरमाते मेरे सहाबा, जी अल्लाह के नबी, फरमाए मेरे सहाबा बताओ तो सही ना, एक बंदे के घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पे मैल कुचैल रह जाएगी? अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं रहेगी। सुनो, नबी सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते मेरे सहाबा जिस तरह नहर के अंदर 5 मरतबा गुस्ल करने वाले के जिस्म पे मैल कुचैल नहीं रहती है, बिल्कुल इसी तरह जो बंदा 5 वक्त मस्जिद में आके अल्लाह रब्बुल इज्जत के कदमों पे सर डाल देता है, मेरा रब उसके दिल पर भी गुनाहों की मैल नहीं रहने देता। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो मेरे मौला, मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, मैंने तखय्युल में पूछा, मैंने कहा मेरे मौला, मेरे मौला, एक ने वुजू किया माफी हो गई, एक ने नमाज पढ़ी माफी हो चुकी है, एक पढ़ता ही नहीं है, इसका क्या करना है? अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो जरा सुनो क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ने पे माफी है, अल्लाह अकबर कबीरा, वुजू करने पे माफी मिल रही है, एक पढ़ता ही नहीं है, इसका क्या बनेगा? सुनो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, और तेरा वास्ता सखी से पड़ा हुआ है। नबी सलाम फरमाते हैं कोई बंदा जब जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से उसके नामे अमाल से सुभान अल्लाह एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हां, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो मेरे मौला, एक ने वुजू किया है माफी मिल चुकी है, एक ने नमाज पढ़ी है माफी मिल चुकी है, मेरे मालिक एक ने जुमा पढ़ लिया इसको माफी मिल चुकी है। अल्लाह एक नमाज भी नहीं पढ़ता, एक जुमा भी नहीं पढ़ता, इसका क्या करना है? अल्लाह अकबर कबीरा। इसका क्या करना है? सुनो सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के साथ मेरे दोस्तों साल के अंदर एक महीना रमजान मुबारक का अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह, एक महीना रमजान मुबारक का अता फरमा दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सामा रमजाना
ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा रमजान मुबारक का रोजा रख लेता है, उधर इफ्तारी के वक्त में ये रोजे को इफ्तार करता है, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके नाम अमाल से गुनाहों को खत्म फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, एक ने रोजा रख लिया, इसकी माफी हो चुकी है, एक ने रखा ही नहीं है, इसका क्या बनेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। एक ने रखा ही नहीं है, इसका क्या बनेगा? सुनो सुनो सुनो, अल्लाह फरमाते हो तेरा वास्ता सखी से पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। फरमाते इसने रोजा नहीं ना रखा, अल्लाह जी नहीं रखा है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये किसी की तरगीब देने से ये मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ने के लिए आ गया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, इधर 20 तरावी से सलाम फेरना इसका काम है, इसके गुनाहों के ऊपर रहमत की कलम फेर देना मैं अल्लाह का काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे मोहदा, एक ने वुजू किया, मग़फ़िरत हो चुकी है, नमाज पढ़ी है, मग़फ़िरत हो चुकी है, जुमा पढ़ा है, मग़फ़िरत हो चुकी है, रोजा रखा है, माफी मिल चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तरावी पढ़ी है, माफी मिल चुकी है। मेरे मौला, एक नमाज भी कोई नहीं पढ़ता, तरावी भी नहीं पढ़ी है, रोजा भी नहीं रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका क्या बनेगा? सुभान अल्लाह। सुनो सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा।